Students, welcome once again to the Awal Academy of Education. In today's video, we are going to start here with our series of biology, that is zoology. We have started zoology portion related to human anatomy and physiology. चैप्टर इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम. अब तक आप 3 पार्ट देख चुके हैं इस सीरीज़ के. आज हम जो है 4th पार्ट जो है इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं. राइट, चलिए. तो बच्चों, अब तक आपने इसके 3 पार्ट्स में जो लास्ट वीडियो था, वी हैव सीन वाइट ब्लड सेल्स, WBC तक का पोर्शन हमने देख लिया है. तो आज हम करेंगे जो ब्लड का 3rd पार्ट है, दैट इज़ ब्लड प्लेटलेट्स. दे आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स. राइट, सो blood platelets are also called initiators of the blood clotting of blood. Right, they are minute oval or round structures. Here this is picture of them. They are minute oval and round structures. Right, they are non-nucleated, nucleus नहीं होता उसमें. They are always floating in the blood. Their number is about 2 lakh to 4 lakh per cubic millimeter of blood in an adult. They are derived from some giant cells called megakaryocytes in the red bone marrow. Here is now they are budded off from the megakaryocytes in a manner that each one is completely surrounded with membrane. Right, so here is development of the platelets. So this is stem cell, and this is stem cells develop into megakaryoblast, and then into megakaryocytes. Then they are disintegrated into the platelets, as I have told here. They are surrounded. They are budded off from the megakaryocytes in a manner that each one is completely surrounded with a membrane, and their lifespan is 3 to 5 days. They are destroyed mainly in the spleen, which is lymphatic organ located in the abdomen. Right, so our spleen is a lymphatic organ located in the abdomen. राइट, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं. सो नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स. राइट, so as I have told you earlier, they are very important in clotting of blood. At the site of injury, the platelets disintegrate to release a chemical substance that is called thrombokinase, which initiate the process of clotting of blood. So here are some functions. The main function, जैसा कि मैंने आपको बताया कि the main function of platelets is clotting or coagulation. Clotting is also called coagulation of blood. When a blood vessel is cut or ruptured, then blood escapes from it, but soon a clot is formed on the wound, and जख्म के ऊपर एक क्लॉट बन जाता है, and the flow of blood is stopped. उस flow of blood को जो है वो क्लॉट जो है रोक देता है, ज़्यादा नुकसान होने से बचा देता है इंजर्ड पर्सन को. अगर ये ऐसा ना हो, हमारी बॉडी ऐसा फंक्शन ना करे, तो हमारी इंजरी जो है डेथ में भी बदल सकती है. राइट, so this clotting or coagulation of blood occurs in a series of steps as given below. Right, so first of all, let me the injured tissue cells and the platelets
which disintegrate at the site of a wound, release, this is release, RELEA, release a chemical substance called thrombokinase or thromboplastin. More recently this has been called as factor X or Stewart factor, right, as it has been discovered by Stewart. So this thrombokinase here acts as an enzyme, ये एक एंजाइम के रूप में काम करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस, दिस कैल्शियम आयंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर प्लाज्मा, जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम आयन, दे कन्वर्ट ए सब्सटेंस प्रोथ्रोम्बिन विच इज़ एन इनएक्टिव सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा इनटू थ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन पहले इनएक्टिव था वो कैल्शियम आयंस की वजह से जो थ्रोम्बिन में बदल जाता है, जो कि एक एक्टिव सब्सटेंस है। तो यहाँ पर जो हमारा विटामिन के हमारे ब्लड में मौजूद होता है, जो कि एक फैट सॉल्युबल, फैट में घुलनशील विटामिन है, ये इस प्रोथ्रोम्बिन को बनाने में, इसकी प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो अब ये थ्रोम्बिन का फंक्शन स्टार्ट होता है, जो कि एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन बना है। तो ये जो थ्रोम्बिन है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में जो फिब्रोजिन है, फिब्रोजिन सोल्युबल फिब्रोजिन है, सोल्युबल माने घुलनशील प्लाज्मा में, तो इससे रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है और इनको जो है इनसोल्युबल फिब्रिन में बदल देता है। जो ये इनसोल्युबल फिब्रिन है ये एक सॉलिड सब्सटेंस के रूप में होते हैं, और जब ये रिएक्शन के बाद ये थ्रेड्स में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्रेड्स हैं दे आर वेरी स्टिकी, चिपचिपे होते हैं, और इस चिपचिपाहट की वजह से एक ये नेटवर्क मैश बना लेते हैं जहाँ पर हमारा जख्म है। इसको आगे हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। जख्म हुआ हमारी बॉडी में तो वहाँ पर एक ये नेटवर्क बना लेते हैं। अब जब ये नेटवर्क बन गया तो जो ब्लड सेल्स हैं इस नेटवर्क में, जो फिब्रिन का नेटवर्क यहाँ बना उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, द नेटवर्क देन श्रिंक्स एंड squeezes out the rest of plasma which is in the form of a clear lipid called serum। तो जब ये नेटवर्क श्रिंक होता है तो इसमें मौजूद जो प्लाज्मा है, जो कि एक क्लियर लिक्विड कॉल्ड सीरम के रूप में मौजूद है, तो इसको स्क्वीज आउट कर देते हैं, जो बकाया जो बचा है प्लाज्मा उसको। तो जो सॉलिड मास है जो बाहर बच जाता है इस कॉल्ड क्लॉट और थ्रोम्बस, राइट। इन टर्म्स को आपने याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो है हमने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे कि यहाँ देखिए ये जो है वेसल एक डैमेज होगी, ब्लड वेसल। तो यहाँ में दिख रहे हैं रेड ब्लड सेल्स और ये जो दिख रहे हैं प्लेटलेट्स, ये दीज आर प्लेटलेट्स, राइट। ये क्या है? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल है ये जब रप्चर हुई तो प्लेटलेट जो है यहाँ पे, यहाँ से रप्चर हुई तो यहाँ पर अपना एक प्लग बनाना शुरू कर देता है, जैसे हमने पीछे बताया। तो यहाँ पे जो फिब्रिन के थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स ऑफ फिब्रिन, यहाँ पर आरबीसीज को ट्रैप करते हैं और यहाँ पर जो है एक क्लॉट बना देते हैं, राइट। तो ये क्लॉट जो है ब्लड को फर्दर बाहर निकलने से रोकता है और पेशेंट्स को डेथ से भी बचाता है, राइट। तो ये तो था उसका डायग्राम और पीछे जो थी हमने इसकी समझी है एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस जो सारी बायोकेमिकल रिएक्शन हुई ब्लड क्लॉटिंग की, इसके दौरान कुछ रिएक्शंस होती हैं तो उनको समझेंगे हम इस चार्ट के उससे कि जो इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू किसका, इंजर्ड टिश्यू सेल्स और जो प्लेटलेट्स हैं यहाँ पे रिलीज होते हैं और थ्रोम्बोकाइनेस जो है
जैसा कि पहले भी बताया मैंने, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको रिसेंटली फैक्टर एक्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव है ब्लड प्लाज्मा में, इनएक्टिव मटेरियल, ये कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें, फिर थ्रोम्बिन मिल जाता है कि ये थ्रोम्बिन जो है वो एक एक्टिव मटेरियल में, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव मटेरियल में बदल चुका है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बिन। तो आगे जो फिब्रिनोजिन है, फिब्रिन्स हैं हमारे इसमें प्रेजेंट ब्लड में, ये सोलेबल होते हैं और ये कैल्शियम आयन से रिएक्शन करते हैं, हमें मिलता है फिर फिब्रिन। यहाँ पर फिब्रिनोजिन जो है वो फिब्रिन में बदल गए। फिब्रिनोजिन जो है इनसॉल्युबल हैं, ये हैं सॉल्युबल, ये हैं सॉल्युबल, ये बन गए इनसॉल्युबल, राइट। तो ये जो इनसॉल्युबल हैं क्योंकि अघुलनशील हैं, घुल नहीं सकते, तो ये फिर अपना एक नेटवर्क बनाते हैं स्टिकी थ्रेड्स का, राइट। अगर ये घुलनशील होते तो ये घुल जाते, तो ये फिर ब्लड को रोक नहीं पाते, राइट। तो ये एक नेटवर्क बनाते हैं स्टिकी थ्रेड्स का, राइट, जो कि क्लॉट या थ्रोम्बस के रूप में जाना जाता है, राइट। तो इस जो ब्लड क्लॉटिंग हुई, इसमें जो ब्लड है वो ब्लड कॉर्पसल्स और प्लाज्मा, और ये जो कॉर्पसल्स है फिब्रिन जो है अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, जो क्लॉट बनाते हैं। और यहाँ पे जो क्लियर लिक्विड बच गया वो क्या है, सीरम, राइट, प्लाज्मा। ये भी आपने ध्यान में रखना। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में जो ये ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसीजर है, हम एक अगर इसको टेस्ट ट्यूब में समझें तो टेस्ट ट्यूब के थ्रू, तो इसको हम ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लेंगे तो एक क्लॉट विल फॉर्म इन ए यूजुअल वे एंड सीरम स्क्वीजेज, जो सीरम है वो इस क्लॉट से निकल जाएगा, ठीक है। तो सरफेस पे जो है ये आ जाएगा। जैसे ये हमने ब्लड लिया तो थोड़ी देर रखा उसको, तो ये देखेंगे ये सारा पहले घुला हुआ था, फिब्रिन थ्रेड्स भी नज़र आ रहे हैं, कॉर्पसल्स भी नज़र आ रहे हैं, आरबीसीज, तो ये सीरम वाला पीला पोर्शन भी हमें नज़र आ रहा है। तो बाद में थोड़ी देर बाद ये क्लॉट जो है नीचे इकट्ठा हो जाएगा और ये पीला पोर्शन बच जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सीरम, राइट। तो ये जो ब्लड है, तो ये जो है ब्लड क्लॉटिंग हम टेस्ट ट्यूब में भी देख सकते हैं, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात आपने ध्यान रखनी है कि हम समझते हैं कि जो ब्लड की क्लॉटिंग है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन एयर, यानी ब्लड जब एक्सपोज हुआ एयर को तब ये होता है। तो ये जो है गलत धारणा है। इनफैक्ट क्लॉटिंग कैन बी काज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ ब्लड ओवर ए रफ सरफेस एज ऑन कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ऑन द इनसाइड ऑफ ए ब्लड वेसल, राइट। तो ये धारणा है, मतलब इसको माइंड में रखना है, गलत धारणा है, सही चीज़ आपने माइंड में रखनी है। चलिए नेक्स्ट अप करते हैं हीमोफीलिया। इस यहाँ पे हीमोफीलिया का जिक्र भी कर लेते हैं। तो ये जो है एक जेनेरिक डिसऑर्डर है जो कि जिसमें के ब्लड में जो है क्लॉट नहीं बनता प्रॉपरली। और क्यों नहीं बनता? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, राइट। ये माइंड में रखना है अपने, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स की वजह से क्लॉट नहीं बनता। इससे इस बीमारी को हम बोल देते हैं हीमोफीलिया, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो आल्सो इन केसेस वेयर अ नंबर ऑफ प्लेटलेट्स फॉल टू एबनॉर्मली लो काउंट, कोagulation occurs very slowly and often leads to hemorrhage. Such a situation occur in certain diseases सच है, जैसे कि डेंगू में पता चलता है कि हमारे प्लेटलेट्स कम हो गए। तो ये इस डेंगू की वजह से जो है लगभग 1996 के साल से लेकर अब तक बहुत सारी डेथ्स इंडिया में हो चुकी हैं, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
अब हम एक चीज़ समझेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, राइट। तो ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन क्या है, ट्रांसफ्यूज़न भी बोल देते हैं इसको, कि the process of injecting blood into the body of patients undergoing surgical operation is called blood transfusion बोलते हैं इसको। एक मरीज से, एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे मरीज को ब्लड चलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, राइट। तो इसमें जो एक हेल्दी पर्सन होगा, डोनर, वो जो है रिसिपिएंट या जो पेशेंट होगा उसको जो है ब्लड डोनेट करेगा, जैसा कि हमें पता ही है। तो in this process blood taken from a healthy person introduced through one of patient's veins, एक veins में लेगा, but for doing so it is necessary that kind or the type of the blood, जो कि ब्लड दूसरे पेशेंट को चढ़ाया जाना है, इसको पहले मैच कर लेना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर ब्लड ट्रांसफ्यूशन तक। कल हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप्स, नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स के हैं उनकी डिटेल करेंगे। तो आज तक हम यही करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ताकि ये आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प कर सके। इट्स गुड बाय नाउ, थैंक्स।